تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد مغفرت اور ہدایت چاہتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر، ان کے اہل خانہ پر۔ اللہ نے آپ کو ہدایت، دین حق، نور اور موعظت دے کر اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، علم گھٹ گیا تھا، لوگ گمراہی پر تھے، زمانہ ختم ہونے کو تھا، قیامت قریب تھی اور موت نزدیک۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت یاب ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بھٹکا ہوا اور کوتاہ ہے اور دور کی گمراہی میں جا گرا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تم اللہ کی باعظمت کتاب اور اس میں موجود وعدہ اور وعید پر غور و فکر کرو، اور دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں رکھے۔ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہاری زندگی میں وسعت دی کہ تم اپنے پچھلے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ رکھے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی لطف و تائید، ربانی عنایت اور روحانی توجہ کی بدولت عرب میں سب سے فصیح زبان والے، سب سے واضح بیان والے، سب سے شیریں گفتگو والے، سب سے درست کلام والے، سب سے واضح لہجہ والے، سب سے درست حجت والے، خطاب کے مقامات کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور درست راہوں کی سب سے زیادہ ہدایت پانے والے تھے۔ آپ بس زبان اور فحش گو نہیں تھے، اور نہ لعن و طعن کرنے والے تھے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ زبان جسم کے اہم اعضاء میں سے ایک عضو اور بندوں پر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ انہیں اللہ نے زبان سے نوازا۔ وہ افکار اور دلوں کی ترجمان ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے نفس کی پوشیدہ بات کی تعبیر کرتا ہے، اور خیر و شر، ایمان و کفر، اپنی دیگر اندرونی باتوں کا اظہار کرتا ہے، اور ہمیں زبان کو برائی اور شر سے روکے رکھنے کی حکم دیا گیا ہے۔ زبان کو روکنا، اسے قابو اور قید میں رکھنا ہر خیر کی اصل ہے۔ جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا وہ اپنے معاملے کا مالک ہو گیا اور اسے پختہ اور منضبط کر لیا۔ اور جب عقل مند اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال اور حسرت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کہ ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور سب سے بلیغ، سب سے قیمتی، سب سے عظیم اور سب سے نفع بخش نصیحتوں میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہے۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہی زبان مجھے ہلاکت کے مقامات پر لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ اسے بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
अल्लाह आप पर रहम करे। ये जानने के हर मुकल्लफ पर वाजिब है कि वो हर कलाम से अपनी ज़बान को महफूज रखे सिवाय उस कलाम के जिसमें वाज़ेह तौर पर मसलहत हो, और जब बात करे और जब बात करने और ना करने में बराबर की मसलहत हो तो सुन्नत ये है कि खामोश रहा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान पर हराम खाने, जुल्म, ज़िना, चोरी, शराब नोशी और हराम नज़र वगैरह से बचना और परहेज़ करना आसान होता है, मगर अपनी ज़बान की हरकत से बचना और परहेज़ करना मुश्किल होता है। हत्ता कि तुम ऐसे शख्स को देखोगे जो दीनदारी, ज़ुहद और इबादत में मशहूर होता है, लेकिन वो अल्लाह की नाराज़गी की ऐसी बात कह देता है जिसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। वो एक कलिमे की वजह से जहन्नम में इस कदर दूर जा गिरता है जितनी दूर ये मशरिक़ व मगरिब के दरमियान है। और कितने ही लोगों को देखते हो जो फहश कामों और जुल्म से बचते हैं, लेकिन वो उनकी ज़बानें ज़िंदा और मुर्दा लोगों की इज़्ज़तों पर हमला आवर होती रहती हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि क्या कह रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की बात ख़त्म हुई। मुसलमानों, बेशक ज़बान की संगीन तरीन आफ़तों में से अल्लाह पर बगैर इल्म के बात करना, झूठ बोलना, गीबत व चुगली करना, इल्ज़ाम तराशी करना, पाक दामन गाफिल भोली औरतों पर इल्ज़ाम लगाना है। इस छोटे से उद्व की एक लग़ज़िश इंसान को हलाकत व बर्बादी तक पहुंचा सकती है। लिहाजा अक्लमंद ज़बान पर जारी होने वाली आफ़तों से बचे, जैसे मुसलमानों की हुर्मतों की पामाली, बदगुमानी, नीयतों पर शक और मुसलमानों के सिलसिले में बेबुनियाद बातों में लगना। और ज़रूरी है कि अपनी ज़बान को क़ील व क़ाल से महफूज रखने की आदत डालें ताकि वो पूरी तरह उसका आदी हो जाए और उसके मामलात दुरुस्त हो जाएं। तो इस तरह ज़बान पर काबू पाना उसके लिए आसान हो जाएगा और उसके शर से वो महफूज रहेगा। अगर कोई बंदा अपने लिए कुछ चुनना चाहे तो खामोश से बेहतर कुछ नहीं चुन सकता। अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जिसने अपनी ज़बान को बेकार बातों से महफूज रखा, अपनी आँखों को हराम नज़र से बचाया, अपने कानों को लहो लहब की बातें सुनने से रोका और अपने औक़ात को इबादत व ताअत से मामूर किया और अपने लम्हात को नेकियों से भर दिया और खालिस तौबा से फ़ौत शुदा चीज़ों का तदारुक कर लिया, इससे पहले कि उसका वजूद आदम में बदल जाए, उसकी सेहत बीमारी में तब्दील हो जाए, उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो जाएं और उसकी ज़िंदगी मौत में बदल जाए, उस बरज़ख में जिसमें जाने वाला उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि आखिरी मखलूक पर मौत ना आ जाए। उस वक्त ज़मीन लरज़ जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल देगी और मखलूक़ात को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा और उनके कामों का भरपूर सिला दिया जाएगा। खुशबख्त है वो शख्स जिसने खैर की बात कही और शाद काम हुआ या बुरी बात से खामोश रह कर सलामत रहा। अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान मुँह से कोई लफ्ज़ निकाल नहीं पाता मगर ये कि उसके पास निगहबान तैयार है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी वाज़ेह किताब और सैयदुल मुरसलीन के तरीक़ा यानी सीरत से नफ़ा पहुँचाए। अल्लाह ताला मुझे और आप लोगों को अपनी वाज़ेह किताब और सैयदुल मुरसलीन के तरीक़े यानी सीरत से नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ अपने लिए और आप सब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। आप अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत तलब करें और उसकी बारगाह में तौबा करें, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और बख्शने वाला है।
अल्लाह के लिए तमाम हम्द है, ऐसी हम्द जो उसकी बका के साथ दायमी है। अल्लाह के लिए तमाम हम्द है, ऐसी दायमी हम्द के बिला मशीयत इलाही जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह के लिए तमाम हम्द है, ऐसी दायमी हम्द कि जिसका करने वाला सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहता है। और अल्लाह के लिए पलक झपकने और हर सांस के साथ तमाम हम्द है। दुरूद व सलाम नाजिल हो हमारे नबी मोहम्मद पर और आपके आल व अस्हाब पर, और उस पर जिसने आपके तरीक़े से हिदायत पाई और आपकी दावत जैसी दावत दी। अम्मा बाद, ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह आप पर रहम करे। जान रखो कि मुसलमान के इस्लाम की खूबी और उसके कमाली ईमान में से ये है कि उन अक़वाल व अफ़आल से दूर रहे जो ला यानी और गैर मुफीद हों, और दूसरों के उमूर में दखल अंदाज़ी ना करे, और उसे चाहिए कि वो ज़ाहिरी व बातिनी गुनाहों और बुरे कामों से बचे। अल्लाह के बंदो, जान रखो कि तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। तुम्हारे अक़वाल व अफ़आल पर तुम्हारा मुहासबा होगा, और अल्लाह अपने बंदों के अमाल का इहाता करने और उन्हें उनका बदला देने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। और दुरूद व सलाम भेजो बिशारत देने वाले डराने वाले नबी पर, जिसका हुक्म अल्लाह ने हमें अपनी रोशन किताब में दिया है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, मोहम्मद पर उनके तमाम आल व अस्हाब पर दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, खुलाफा राशिदीन से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें बेहतरीन अखलाक और अक़वाल व अफ़आल की हिदायत दे। तू ही उनमें सबसे बेहतर की हिदायत देने वाला है, और बुरे अखलाक और अक़वाल व अफ़आल की हमसे फेर दे, और बुरे अखलाक और अक़वाल व अफ़आल को हमसे फेर दे। तू ही उन बुरी चीज़ों को हमसे फेरने वाला है, और हमसे बुराई और बेहयाई को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे यकीन और दुनिया व आखिरत में दायमी अफ़्व व आफ़ियत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, फ़िलिस्तीन और हर जगह के कमज़ोर मुसलमानों को नजात दे। ऐ अल्लाह, गासिब यहूदियों पर अपनी पकड़ को सख्त कर दे। ऐ अल्लाह, उन पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की कहत की तरह कहत साली नाजिल कर दे। ऐ अल्लाह, उनके इज्तिमाइयत को तोड़ दे और उनकी सफ़ों को मुंतशिर कर दे। उनकी चाल को उन्हीं के ऊपर पलट दे, और तू उन्हें अपनी कुदरत से शिकस्त दे जो ज़ालिम कौम से कभी नहीं टलती। ऐ अल्लाह, हमें हमारे वतनों में अमन अता फरमा। हमारे सरबराह खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। उनको अपनी हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा, और उनके अमल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को अपनी किताब पर अमल करने और अपनी शरीयत को फ़ैसल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह, हमारे मुहाफ़िज़ों और सरहदों पर मौजूद फ़ौजियों को तौफ़ीक़ दे, उनका मुईन व मददगार और हामी व नासिर बन जा। ऐ अल्लाह, हमसे हमारे इस मुल्क से खुसूसन और तमाम मुस्लिम ममालिक से उमूमन महंगाई, वबा, सूद, ज़िना, ज़लज़ले, आफ़तें और ज़ाहिर व बातिन आज़माइशों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, तू गमज़दों के गम को दूर फरमा। कर्ज़दारों के कर्ज़ की अदायगी कर, और मुसलमानों के बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह ताला अदल, एहसान और क़राबतदारों को अता करने का हुक्म देता है, और बेहयाई, नापसंदा और सरकशी के कामों से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो, अज़मत वाले अल्लाह का ज़िक्र करो। वो तुम्हें याद रखेगा और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें मज़ीद नवाजेगा। यकीनन अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है।